Hello students. Good morning everyone. I am Rajendra Simuri. Today I am going on to this online learning platform. Using this platform now in this fifth video. Today we are going on to the new unit number 15, probability. Now in mathematics it's a very easy unit, and in this unit we score number of marks inside because of everyone already studied in 9th standard this probability. Now this points of this probability, it's very easy because of whatever the points we include into the 9th standard, that points again include into the standard 10th, and then probability it starts. So this probability is based on the chance. Now everybody knows that if we have to take the chance, we have to take the broad vision of the probabilities. What do you understand about the probability? What is event? What is experiment? What is the equally likes? Outcomes is there, favorable outcomes is there. This all kinds of the terms that we going one by one inside this chapter. So in this part, this is a part 1 for the probability, and we have to go using this video up to the elementary event. एलिमेंट्री इवेंट तक हमें इस वीडियो में सर्च करना है, देखना है कि कैसे हम एक कोई कंसेप्ट के ऊपर यदि जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा भी देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की बात हम करें तो हम नंबर ऑफ टाइम्स वी लिसन नंबर ऑफ सेंटेंसेस लाइक weather forecasting. That is also one of kind of the probability because of we not certainty on it, either the rain is fall or not, or sometimes always we say that some of the universal truth is that. So that is the sure event, like sun is rises in the east. If this kinds of the sentence is given, then it is a sure event. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सन ईस्ट की जगह से वेस्ट में से निकल आए, और कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि ईस्ट में से सन निकले ही नहीं। मतलब ये सब ऐसी बातें हैं कि जो हमारे सामने रखी जाए तो हम ये सोच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये सब चीज़ हम इसी चैप्टर से हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दैट पोर्शन अगेन. So first of all, just given here, so inside that first thing, we start from the 9th standard. Some of the times we are using here 9th standard point of view. We are just include here what things is remains into the 9th standard. So in 9th standard, sometimes we are using that experimental or empirical probability, either experimental or it may be said that empirical probability of the event. जो इवेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर होता है, मतलब based on the result, whatever the actual experimental we done, at the help of this experimental, if we have to find out such kinds of the result, यदि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से रिजल्ट मिलता है, उस सभी प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये चीज़ तो बड़ी इजी सी हो गई है, और हम जब भी हमारे पास ये चीज़ रखने का एफर्ट लगाएंगे, तो अब ये एफर्ट कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो just we have to taken here that
experimental or empirical probability of the event based on the result of actual experimentation. मतलब हमारे पास जो भी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है जो बेस्ड ऑन द रिजल्ट होती है, वो चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. तो हम इसका एक सिंपल सा इक्वेशन बना सकते हैं और इस इक्वेशन को हम कैसे रिफर करते हैं, P ऑफ E. P यहाँ पे जो आपको दिख रहा है P ऑफ E का मतलब ऐसा होता है कि P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी, P का मतलब प्रोबेबिलिटी और E का मतलब होता है इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन. मतलब हम यहाँ से ऐसा देखना, एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल में हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. एक तो नंबर ऑफ ट्रायल्स विच द इवेंट हैपन, हाउ मेनी टाइम्स this particular event is happened, that number of trials we given into the numerator part, and the denominator part of this equation, that is the total number of trials. So if we have to divide both of the things and whatever we get, that is our probability of that event. तो ये चीज़ समझने में तो बहुत इजी है, वो चीज़ हम 9th स्टैंडर्ड में भी सीख कर आए हैं. बट हमें जब भी ये चीज़ को समझने का ट्राई करना है तो हम कैसे उसको समझे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, वो चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है. अब हम देखें तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और ये पुट करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करें. तो पहले ये इक्वेशन हमें याद रखना है कि P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन divided by total number of trials. That is equation for the experimental or empirical probability. Now just we have to check it out with one questions here. That question just we have to put here. Now some of the times we listen that which kinds of the questions we just using here. कि आपके पास कोई कॉइन है या आपके पास कोई भी डाइस, तो डाई और कॉइन का आप यूज़ करना चाहें तो वैसे भी हमें पता है कि जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टॉस का रिजल्ट है वो कोई भी एक ही होगा, बट उसके पॉसिबल जो भी आउटकम है उसको भी हम कंसिडर करने वाले. सेम थिंग हमारे पास कोई भी डाई है और डाई को हम कितनी भी बार उस इवेंट को हैपन करने लगे, मतलब उसी इवेंट सेम प्रोसीजर से हम करते रहे और जो भी रिजल्ट हमें मिलते जाए वो रिजल्ट को यदि हम नोट डाउन करें, ऐसी प्रोसीजर को नंबर ऑफ ट्रायल से यदि डिवाइड करें तो जो मिलता है वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है. तो वही क्वेश्चन से हम देखना चाहेंगे यहाँ पे. जस्ट वी हैव टू टेक हियर कि सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा आप कि एक क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ आपको देखने मिलती है कि 2 बैलेंस्ड डाइस आर टॉस्ड 50 times and the sum of the integer on the dice are noted in the table. Here given into the next portion we have to cover that कि 2 बैलेंस्ड डाइस का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि प्लूरल ऑफ द डाई, एक से ज़्यादा, then we have to use dice, otherwise it will be considered as a die, D-I-E. सो 2 बैलेंस डाई या 2 बैलेंस डाई का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी डाई है उसके ऊपर जो भी नंबर्स है वो एज इट इज़ है, वो फेयर है, इसमें कोई भी बायस नहीं है, मतलब अनबायस्ड. अनबायस वर्ड भी यूज़ हो सकता है और बैलेंस डाइस भी हो सकता है. तो यदि हम उसको 50 टाइम्स टॉस्ट करें and the sum of the integer on the dice are noted in the table, that is our frequency. So just we have to take it out. First of all, just we have to going thoroughly. First of portion here considered that which kind of the question, again we repeat it. Just the balanced dice are tossed 15 times and the sum of the integer on the dice are noted in the
फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ पे एक टेबल दिया गया आपको, और वो टेबल के अंदर आप देखो तो एक रो आपको दिख रही है सम, और दूसरी आपको दिख रही है फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द इंटीजर एंड द फ्रीक्वेंसी गिवन। कि यदि हम ऐसा बात करते हैं कि सम टू डाइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब एक साथ में 2 डाइस एक साथ उछाला गया तो उसका टोटल जो होता है वो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे इंडिकेट है, वो सम जहाँ पे लिखा है वो सम से जो भी नंबर हमें यहाँ पे दिख रही है वो दोनों डाइस का टोटल सम है। वो कितना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वी नो दैट कि डाइस हैविंग मैक्सिमम 6 नंबर, 6 + 6 12, और मिनिमम होता है डाइस के ऊपर वो 1 होता है, तो 1 + 1 यानी 2। तो 2 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम हमें कितना मिलता है 12 मिलता है। तो ये हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है कि यदि सम 2 बार आए, ऐसी फ्रीक्वेंसी 3 बार है। ऐसे 9, 3, 9, 4, 8, 5, 8, 6, 4, 7, 5, 8, 1, 9, 3, 10, 7, 11, 2 and 12, that is never having any kind of the frequency। तो ये चीज़ ये बताती है आपको कि इतनी बार ये इवेंट टॉस है वो 50 टाइम उछाला जाता है, और उसका जो भी टेबल हम बनाते हैं उसमें ये वैल्यू हमने नोट डाउन की है। तो ये वैल्यू का हम यूज़ करके प्रोबेबिलिटी यदि हमें फाइंड करनी है तो कैसे करें, वो चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो जस्ट वी हैव टू टेक यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब इवेंट क्या है, जस्ट इट गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल here given that sum of the integer is more than 9। अब आपको पहला इवेंट को समझना है, sum of integer is more than 9, sum of integer is exactly 7 and sum of the integer is less than 6। अब आप देखो तो sum of integer की बात हम देख रहे हैं, यानी पहली रो को हमें देखना है। उसमें यहाँ पे पहली इवेंट ऐसी बताई गई है कि sum of integer is मोर देन 9। अब आप देखो टेबल भी आपको क्लियरली दिखता होगा, और सम ऑफ द इंटीजर इज़ मोर देन 9 की हम बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में आती है अच्छी तरह से। वो कैसे कि सपोज़ हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 9 मतलब यहाँ से आगे जाना है, कहाँ जाना है, आगे जाना है। अब ये चीज़ 9 मोर देन 9 का मतलब होता है 10, 11 एंड 12। 10, 11 और 12 में यदि फ्रीक्वेंसी का सम हमें करना है तो कैसा है, 10 की फ्रीक्वेंसी 7 है और 11 की 2 है और 12 की 0 है, तो 7 + 2 कितना होता है 9। तो सम ऑफ इंटीजर इज मोर देन 9 का फ्रीक्वेंसी हमें मिलना चाहिए, तो कितना मिलेगा 7 + 2 9 ही मिलेगा। सिमिलर वे मोर देन 9 का मतलब होता है कि 9 से ज़्यादा। सम ऑफ इंटीजर इज एग्जैक्टली 7। एग्जैक्टली 7 का मतलब ऐसा होता है कि जो 7 है वही चीज़ को हम कंसीडर करें। तो 7 को कंसीडर करें तो 7 की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। सिमिलर वे सम ऑफ इंटीजर इज लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब होता है कि हमें जो भी यूज़ करना है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है लेस देन 7, यानी 3, 9, 8, 8। तो इतनी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। So that is very easy because of we have to cover up these things with using of find the probability of the following event. We have 3 event, more than 9, exactly 7 and less than 6. So how can we write into our portion? So just we have to take first of here given into the solution point, just take it out here. Now the total frequency is 15. Why it is given here 15? Because we have already given that 15 times toss, 15 times 2 dice are tossed. It means we have to throw these 2 dice how many times? 15. So we have to total frequency is n is equal to 15. Now just going on to the second portion. तीनों 3 इवेंट को पहले हम
डिफाइन कर लेते हैं. फर्स्ट इवेंट को हम ए से डिफाइन कर लेट. ए इज द इवेंट दैट सम ऑफ द इंटीजर इज मोर देन 9. नाउ second one that we considered here, that B is the event that sum of integer is exactly 7, and third that is C. C is the event that sum of integer is less than 6. All three events are assuming with the A, B and C. A is more than 9, B is exactly 7 and C is less than 6. So let us start with this 3. How can we get this solution that I given over here one by one? So first thing, suppose now for event A, अब event A को consider करो तो here given that whatever the result is getting, that is also be defining with 3, result 1, result 2 and result 3. First of all we are going on to the result 1. Result 1 is given here that 7 plus 2 plus 0 is equal to 9. Why this 7 plus 2 plus 0 is equal to 9? We all know that because of the condition event is more than 9. तो आप अपने टेबल्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोर देन 9 का मतलब कितनी कॉलम में हमें कंसिडर हुआ है, 10, 11 और 12. 10, 11 और 12 में कितनी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, 7 and 2. 7 plus 2 plus 0 यानी कितना होता है, 9. Same thing we are using here in the equation. So 7 plus 2 is equal to 0, 9 for event B. That is our result 2. That is only 5. That is also be considered from here. Exactly 7 का मतलब होता है 5. You can also see in this table 7 and 5. And third one is considered that event C, that is result 3. That is the condition for that event is less than 6. Less than 6 का मतलब होता है sum of less than 6 का मतलब होता है 2, 3, 4 and 5 only. So sum of that 2, 3, 4, 5 having the frequency 3 plus 9 plus 8 plus 8. That's why we have to get here the 28. So using this all these things we have to get all the fundamental result 1, result 2 and result 3. Suppose after getting these things, if we have to find out the probability, यदि हमें probability find करनी है तो probability हम कैसे find करेंगे कि suppose हमारे पास total कितने हैं, उसमें से हमें कितने मिले, तो ये चीज़ है, ये थोड़ा solution हम ऐसे फाइंड कर सकते थे जिसको हम एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो आई होप सो दैट एवरीबडी हैज़ लिटिल बिट knowing about that things, and if you are not getting these things, again and again you rewind the videos and you watch carefully for that portion. Okay, so let us move on to the next portion over here. Just going on that, first of all, here given that regarding which portions we have to discuss here, just we have to take it out. Probability, a theoretical approach, that is the also one of the points that is covered inside. Now what you understands about this theoretical approach? अब हमें ऐसा है कि probability हम ऐसे daily routines में बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं, बट हमें कोई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अच्छी तरह से ये चीज़ सिखाने से भी कभी कभी हमारे सामने नहीं आती है, या हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है. वाई वी आर chosen only one result among of all the experiment, but sometimes this theoretical approach is based on that. So which things is included, just we have to take it out. First of all, here given that most important concept, equally likely, if a coin is tossed at random, then we can assume that each outcome, head or tail, is as likely to occur as the others. So the outcomes head and tail are
equally likely. Now, again I repeat this sentence, it is very easy. What do you understand about this equally likely? Just we have to take here, first of all, equally likely की बात हम कर रहे हैं. If a coin is tossed at random, यदि हमने कोई भी coin है उसको randomly tossed किया है, तो हम एक ही चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो भी आउटकम है या तो हेड होगा या तो टेल होगा. वो हम भी जानते हैं कि यदि कोई भी इस कॉइन को हमने उछाला तो इसकी जो प्रोसीजर होती है वो ऊपर से नीचे आने के बाद रिजल्ट तो सिर्फ हमें एक ही मिलेगा ना, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा. दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स इज लाइकली टू अकर एज द अदर. मतलब एक हेड होता है तो टेल भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और टेल होता है तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी साथ में ही होती है. तो दोनों चीज़ इक्वली लाइकली है, समझो. सो वॉट एवर द आउटकम, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली. या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड भी आ सकता है. तो ये चीज़ जो हम कर रहे एक टॉस के हेल्प से, तो हमें इक्वली लाइकली का कंसेप्ट माइंड में सेट होता है. दूसरी चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि सपोज विथ यूजिंग अनदर एग्जाम्पल, इफ वी थ्रो ए डाई once for us a die will always mean a fair die. So possible outcome 1 2 3 4 5 and 6. Again I repeat, if we throw a die once, एक डाई को एक ही बार आप थ्रो करें, तो for us how can we assume or observe that डाई विल ऑलवेज मीन ए फेयर डाई. मतलब ये फेयर डाई है, उसमें कोई बायस नहीं है, ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है, और वो डाई के ऊपर जो भी नंबर से वो 1 2 3 4 5 6 एज इट इज़ है, मतलब दैट इज़ प्योरली फेयर. सो पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 6 हुए ने. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है. तो पॉसिबल आउटकम इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो ऑल आर द इक्वली लाइकली ना. जैसे कि हमने कॉइन में देखा, तो कॉइन क्या हुआ था, हेड और टेल, तो दोनों हेड और टेल दोनों इक्वली लाइकली है. सेम इन द डाई देर आर 6 डिफरेंट आउटकम एंड ऑल 6 आउटकम आर इक्वली लाइकली. सो इट्स इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ थ्रोइंग ए डाई. So these things is very important for understanding probability of the theoretical approach. Now we are just going on to the next portion. Just we have to check. First of all, now this theoretical approach we have to using. First of all, just going thoroughly. This theoretical probability is also known as classical probability. Theoretical probability को classical probability भी बोला जा सकता है. मतलब we have to know these things with another name. It is also known as the classical probability. Second thing is the theoretical probability of an event. E का मतलब कैपिटल, E का मतलब यहाँ पे होता है इवेंट. In the theoretical probability of an event, E written as P of E. जैसे कि यहाँ पे लिखा है P of E का मतलब होता है probability of event and defined as one particular equation. That equation is more important here and you all are written in your notebook carefully and you have to remember till this probability chapter is over. So very easy things we have to using P of E, probability of event. theoretical probability का इक्वेशन यदि ऐसा सेपरेटली आपको पूछा जाए तो भी आपको पता चलना चाहिए कि theoretical probability of event E written as P of E and defined as probability of E is equal to number of outcomes favorable to E
divide by number of all possible outcomes of the experiment. Again I repeat, probability of E is equal to number of outcomes favorable to E divided by number of possible outcome of the experiment. So that things is very very important for the theoretical approach of this probability, और that is a general equation for the probability. जब भी आप probability का कोई भी equation use करो तो theoretical point of view से हम जो भी equation use यहाँ पे करेंगे वो क्या होगा, that is defined over here. So कैसे define करते हैं, कैसे उसको इंडिकेट करते हैं, और हम थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, ये तीनों चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है. क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यदि आपको पूछा गया तो भी वो थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी ही होगा. वो कैसे डिफाइन किया जाता है वो भी आपको प्री से कंसिडर करना है. एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इनसाइड दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ इट. तो आप अपनी तरह से याद रख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई. जितने भी फेवरेबल आउटकम है उसको हम न्यूमरेटर की पोजीशन में रखेंगे और डिनोमिनेटर की पोजीशन में हम रखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे अवेलेबल होगा. यदि हमारे पास कॉइन है तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे. और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल जो भी इवेंट हम है कि हमें ऐसा बताया गया कि हेड है तो हेड का फेवरेबल नंबर कितने होंगे, 1 होंगे. टेल का कितना होगा, 1 होगा. बट डिनोमिनेटर की पोजीशन पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितने होंगे, वो 2 होंगे. तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है. वैसे ही यदि कॉइन की जगह हम डाई का यूज़ करते हैं तो डाई भी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई कितने हुए, 1. और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितने हुए, 6. बिकॉज ऑफ डाई के टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 6 है. तो ये चीज़ है वो समझने में बड़ी ईजी है. दैट्स वाई इट इज़ ईजी फॉर यू. Okay, so I hope so that this equation is very important and you all are depict in your notebook. Okay, now we are going on to the next portion. Just take it out. First example over here, that is also be given in your textbook also. So periodically you also checked it out. Suppose here given that find the probability of getting a head when a coin is tossed 1. Also find the probability of getting a tail. Again, example 1, find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. बट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो भी कॉइन को एक ही बार टॉस करने के बाद. और दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल. और आप टेल की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो. तो वैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब भी ऐसी कोई इवेंट है तो हमें पहले इवेंट डिसाइड करनी है. और इवेंट पहले में हमें इवेंट क्या डिसाइड करनी पड़ेगी, जो भी इवेंट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम कंसिडर करेंगे. और इवेंट क्या होगी, गेटिंग ए हेड. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 ही है. और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 है. तो 1/2 ही इसका आंसर रहेगा. 1/2 इज इक्वल टू 0.5 भी आप लिख सकते. सेम सिमिलर वे वही इक्वेशन को हम अनदर इवेंट से कंसिडर करें वेयर द गेटिंग अ टेल, देन इट इज ऑल्सो बी हैविंग 1/2, दैट इज ऑल्सो 0.5. सो हाउ कैन वी कंसिडर हियर, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल here given that
Now, first of all, how can we find out the solution for this example? Tossing a coin once, just we have to take here. Tossing a coin once, the number of possible outcome is 2, head and tail, that we know. Okay. Second thing is, let E be the event. फर्स्ट हमें इवेंट को एज्यूम कर लेना है, तो हम ई को फर्स्ट इवेंट गेटिंग हेड की पोजीशन पे हम रखते हैं, मतलब आवर इवेंट ई इज ऑल्सो बी गेटिंग अ हेड, जस्ट वी हैव टू यूज इट. देन द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई इज 1. हमें इवेंट ई है वो कौन सा एज्यूम कर लिया है यहाँ पे, गेटिंग हेड. द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई इज ऑलवेज 1. तो जो भी चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी इक्वेशन में रखने के बाद, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इट, जस्ट वी हैव टू पुट इनटू द इक्वेशन. जस्ट P of E is equal to event head. Then number of outcomes favorable to E, number of all possible outcome कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वही इवेंट पहली इवेंट क्या है, गेटिंग हेड, और दूसरी इवेंट क्या है, गेटिंग टेल. यदि गेटिंग हेड है हमारी, तो वो इसके फेवरेबल कितने हैं, 1 ही है, तो 1. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2. सिमिलर वे वी आर यूजिंग फॉर द टेल ऑल्सो. So both of the having the answer is 1/2, 1/2, or we can also write that 1/2 is equal to 0.5 also. So है ना, बहुत इजी चीज़ है, और ये चीज़ हम जितनी जल्दी समझ जाए इतना अच्छा है. ओके, सो वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2. Now this is also be very easy example. Suppose a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball and blue ball? So this example is very easy one, because of once we have to read carefully any kind of the question, then 80% questions we understood easily. हमें मेन दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो क्वेश्चन को पहले हम समझते नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होता है. तो हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब तक हमें समझ में ना आए तब तक हमें वो क्वेश्चन को ही फोकस करना चाहिए. और जैसे हम क्वेश्चन को फोकस कर लिया अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन में ही हम हमारा आंसर ढूंढ लेते हैं. अब समझो कि यहाँ पे कृतिका हैविंग अ बैग एंड बैग कंटेंट्स 3 balls, रेड, ब्लू एंड येलो. कितने बॉल है, 3 ही बॉल वो बैग में है. ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज, वो सेम साइज के है. और कृतिका टेक्स आउट अ बॉल, एक ही बॉल वो बैग में से लिखती है विदाउट लुकिंग इनटू इट. उसमें बैग में देखना नहीं है, देखे बगैर ही कोई भी बॉल वो बैग में से निकालती है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, वो येलो बॉल, वो जो भी बॉल उसने पिकअप किया वो येलो बॉल हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी. वो पिकअप किया गया बॉल वो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी, और ब्लू बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो आप शांति से और साइलेंटली उसके ऊपर आप फोकस करो तो आपको ऐसे ही आंसर मिल जाता है. कैसे कि बैग कंटेंट्स है रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, यानी 3 बॉल वो बैग में है, और बिना देखे उसमें से एक बॉल निकालना है. तो कोई भी बॉल उठाया तो वो बॉल या तो रेड होगा या येलो होगा या तो ब्लू होगा. तो वो प्रोबेबिलिटी आप देखो तो पहला ही बॉल उठा लिया तो वो रेड निकला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही है. मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी की इवेंट को आप समझने की ट्राई करो तो इवेंट तो एक ही बनती है, क्योंकि आउटकम एक ही है. जैसे कि कैसे उसको कंसिडर करता है, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट.
In this, first of all, here listen carefully and showing completely of this text. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it, so it is equally likely that she takes out any one ball of it. अब ये तो पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली हो गई ना कि कोई भी चीज़ आप एक बैग है और बैग में से आप निकालो तो वो चीज़ आप येलो हो, रेड हो या ब्लू हो, इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो इक्वली लाइक. सो जस्ट वी हैव टू पुट द इवेंट. 3 बॉल है और तीनों की एक एक इवेंट हम एज्यूम कर लेते हैं. सपोज हम मान लेते हैं कि लेट वाई बी द इवेंट फॉर द येलो बॉल, R be the event for the red ball and B be the event for the blue ball. Just we have to use now. So the possible outcome कितने हुए? 3 ही हुए, क्योंकि 3 बॉल है तो आउटकम कितने होंगे? 3 होंगे. So in the first points, येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट Y. वो कितने? येलो बॉल एक ही है बैग में तो एक ही फेवरेबल आउटकम रहेगा. सिमिलर रेड बॉल भी एक ही है तो फेवरेबल एक ही रहेगा. हाँ, पॉसिबल आउटकम 3 है क्योंकि बॉल की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 3 है. बट उसमें से येलो आने की इवेंट तो एक ही होगी ना. फेवरेबल येलो फेवरेबल होने की इवेंट कितनी होगी? एक ही होगी. तो यहाँ पे एक ही चीज़ हमें देखनी है कि P ऑफ Y यानी येलो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल टू दैट इवेंट ओनली 1. सो वी हैव टू पुट इनटू द न्यूमरेटर पार्ट इज 1 डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 3 है तो 1/3. सिमिलर वे फॉर द रेड इज ऑल्सो 1 इवेंट बट P ऑफ R प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1/3. For event blue, that is also 1. Probability for the blue is also 1/3. तो यहाँ पे आप देखो तो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है. वो क्या है कि हर एक इवेंट का आउटकम फेवरेबल आउटकम एक ही है और इसकी इवेंट एक ही है. पॉसिबल आउटकम 3 है बिकॉज ऑफ इनसाइड द बैग इज 3 बॉल्स. सो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 3. बट उसमें से जो भी आप इवेंट डिसाइड कर रहे हो वो उसके फेवरेबल तो एक ही है. तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप क्या सीखे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ है वो अच्छी तरह से समझे. सो फ्रॉम दैट वी हैव टू यूजिंग द अनदर इवेंट नेम. यूजिंग दिस बोथ ऑफ द एग्जाम्पल वी हैव टू टेक द एलिमेंट्री इवेंट हियर. नाउ एलिमेंट्री इवेंट, what do you understand about this elementary event after using this both of the example? यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से आप रिवाइंड करके एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 फिर से जब तक आपको समझ में ना आए तब तक वो दोनों एग्जाम्पल को आप क्लियर करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you understand about this elementary event? An event having only one outcome of the experiment, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम है. कितने सारे एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम होगा, उस इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है. एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट. तो हमने देखा कि दोनों एग्जाम्पल में आपने एग्जाम्पल 1 में आपने देखा तो एग्जाम्पल 1 में क्या था? उसके हेड या टेल, हेड आने की भी एक ही आउटकम था, टेल का भी एक ही आउटकम था. हाँ, फेवरेबल 2 थे बट वो इवेंट होने का आउटकम तो सिर्फ एक ही था, या तो हेड या तो टेल. सेकंड एग्जांपल में आपने देखा तो रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू एंड रेड ब्लू बॉल एंड थर्ड वन इज कंसिडर्ड द ऑल्सो यूजिंग दिस. तो तीनों बॉल आप यहाँ पे देखें तो ये तीनों बॉल में भी इवेंट तो एक ही थी, या तो ब्लू बॉल या तो रेड बॉल. इसका
only one outcome is there. That's why it has also having the one event. So elementary event is based on an event having only one outcome. Just we have to check it out. Example 1 and example 2 both having the elementary event, because in each event having only one outcome. कितना आउटकम है? एक ही आउटकम था, हेड या टेल. सिमिलर वे example 1 event E and F has one outcome, and yellow, red and blue has also one outcome. तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 में आप देखो तो हर एक में पहले एग्जाम्पल में 2 इवेंट थी, एक हेड और टेल, बट एक्चुअल इंडिविजुअली वन आउटकम ही था. सिमिलर वे येलो, रेड एंड ब्लू में भी एक ही आउटकम था. तो ये समझने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल सीखे, जिसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्री इवेंट्स. सो इज इट क्लियर? You all are write down this elementary event with the using of the example 1 and example 2. Now just we are using that, and most important things that not is very very important here. The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is always 1. अब देखो तो सपोज ऐसा मैं देखो P of E और P of F दोनों में आपने देखा तो इवेंट 1-1 ही थी, तो 1-1 का हम ऐसा कंसिडर करें तो एक ही आंसर आता है. वैसे येलो, रेड और ब्लू तीनों का भी एक ही आंसर आता है. मतलब एक्सपेरिमेंट आप जितने भी करें, उस एक्सपेरिमेंट के ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है. तो कभी ऐसा पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री इवेंट है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ ब्लैंक एक्सपेरिमेंट इज ब्लैंक. ब्लैंक यदि यहाँ पे पूछी गई तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1 ही होगा. तो ये चीज़ समझाने के लिए आपको बताया गया था. एंड एट द लास्ट, so we are using this all the portion up to this. Today from this video I am providing the homework at the last of my video, and you all are searching of this all the terms, and you have to write down this all the things and meanings. If you have search more things regarding the all the terms, that is you have to write, and you have to mention the initial points in your notebook. So sometimes if you have feeling any kind of the doubts regarding this all the points, you can also be ask me. Okay, so this is your homework, and thank you very much for keeping or watching this kinds of the video, and I hope so that everybody enjoyed a lot. Thank you very much.